Hello students, welcome to my channel Bio Ki Pathshala. So today we are going to study the next chapter, that is the control and coordination. Okay. So what do you think we are going to talk about in this lesson, in this control and coordination? So let's just recall the previous lessons which we have studied in class 9th. In class 9th we have studied about the cell. We all know that the cell is the structural and the functional unit of life. After cell we have studied the tissue. We all know that the group of cells which are similar in function group together and form the tissue. Then in class 10th we have studied about the life processes. We all know that the cell is the structural functional unit of life. Cell constitute and form tissue. Tissue constitute and form organ. Organ constitute and form the organ system, and organ system constitute form the whole organism. So in the previous chapter, life processes, we have studied about the various systems which occur in our body. Like digestive system, they have different organs. Respiratory systems, they have different organs. ठीक है बेटा, तो सभी के पास अपना अपना organ है, and these organs together constitute the system. Okay, and these processes keep happening in our body. So here in this lesson we are going to talk about the control and coordination. You might be wondering what is control and coordination we are talking about. So let's understand with the help of the things happens in our life. ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में अकर करती है उसके हेल्प से हम इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. So let's have an example on a small child growing up. Okay, जब एक छोटा बच्चा मदर के वॉर्म में रहता है तो बहुत छोटा सा रहता है, फिर मदर उसको बर्थ देती है, तो वो छोटा बच्चा धीरे धीरे टाइम टू टाइम ग्रो करता है और एक यंग ह्यूमन बीइंग में या फिर यंग मैन और गर्ल में वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट जो यंग मैन है वो तो भी ग्रो करता रहेगा और ग्रो करते करते वो ओल्ड हो जाता है. सो व्हाट इज़ दिस ग्रोथ ऑल अबाउट? आई मीन what is there inside our body that tells the body to need to grow. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी को बोलती है कि हमें बढ़ना है. ठीक है, so growth is something which we experience every day, but here in this lesson we see how does it occur. Have you ever, now let's understand the second example, कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है, जब भी हमें करंट लगता है तो क्या हम वेट करते हैं कि हमें करंट लगा है, अब हमें चेयर से उठना है या फिर अब हमें प्लग के पास से अपना हाथ हटाना है? ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जैसे ही हमें करंट लगता है कि हमें करंट लगा है हम तुरंत अपना हाथ प्लग से हटा लेते हैं. ओके, या फिर अगर हम बैठे हैं तो हम खड़े हो जाते हैं. सो वॉट इज़ देयर इनसाइड आवर बॉडी विच एक्चुअली टेल्स अस टू जम्प? What is actually inside our body which tells us to remove our hands from the plug or to jump? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें कहती है, हमें इंस्ट्रक्शन देती है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को कि हमें ये जो भी फंक्शन है ये परफॉर्म करना है. ओके, तो जो भी हम फंक्शन परफॉर्म, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लाइक वेदर वी सिट, whether we stand, whether to eat, whether to move, so that all we talk about in this lesson, control and coordination. So everything we do there is someone giving instruction to each and every cell of the body to do the required action. Like let's take another example. आप कहीं जंगल में जा रहे हो, आपके पीछे से टाइगर आ रहा है. ठीक है, आपने उसे देखा तो क्या आप खड़े होकर वेट करोगे, खड़े होकर सोचोगे, डिड यू थिंक फॉर एन आवर कि हमें भागना है, हमें अपना पैर बढ़ाना है? ऐसा नहीं होता. ठीक है, एज सून एज यू विल सी द टाइगर यू विल रन. अनदर एग्जाम्पल, वेन एवर यू टच द हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होता है कि हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं. हम सोचते नहीं है, वी नेवर थिंक कि हमने हाथ अभी रखा है, हमें महसूस हो रहा है कि हाँ जल रहा है, अब हमें हाथ हटाना है. ऐसा नहीं होता. ये जो भी फंक्शन अकर करता है वो तुरंत अकर करता है, इमीडिएट एक्शन अकर करते हैं. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जब हमें बहुत भूख लगी होती है और हमारा मनपसंद खाना हमारे सामने आ जाता है तो हमारा माउथ में क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होने लगा है, दैट वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट होने लगा. लाइक आप लोग को, बहुत लोग को मैगी पसंद होगा, तो जब भी आप लोग मैगी का नाम सुनते हो या मोमोज़ का नाम सुनते हो, मैनी ऑफ देम लव्ड मोमोज़, तो जब भी मोमोज़ का नाम आता है तो हमारे मुंह में वाटरिंग अपने आप अकर करने लगती है.
ऐसा तो है नहीं कि हम सोचते हैं कि हमें वाटरिंग करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप अगर करता है। तो जो भी बॉडी में हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमें दौड़ना है, लिखना है, पढ़ना है, सोचना है, वो सब हमारी बॉडी को कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली विच who is there inside our body which gives the instruction to our body. So let's talk about the coordination. So what is coordination? So let's understand with the help of the example. Suppose कि आप लोग के स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम अकर किया है, ठीक है, जिसमें कि आप एक ग्रुप डांस और एक सोलो डांस है। तो ग्रुप डांस में क्या, ग्रुप डांस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, सभी लोग स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। लेकिन सोलो डांस क्या है, सोलो डांस में इसको डांस नहीं आता है, वो सिर्फ स्टेज पे खड़ा होकर जंप कर रहा है। तो आप कौन सा गुड डांस प्रेफर करोगे कि जो अच्छा है? ग्रुप डांस, ऑब्वियसली ग्रुप डांस प्रेफर करोगे क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे में है, स्टेप बाय स्टेप उसमें अकर कर रहा है। तो जो ग्रुप डांस है बेटा, उसमें जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे हैं, वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो सिमिलरली इन आवर बॉडी all the functions where each and every part will do their own job as well as they do not their own take being synchronized with the other parts. So what is control and coordination? It means coordination means whatever the functions taking place in our body, they contribute together, ठीक है, they come into synchronized form and then they so that our life can be sustained easily, ताकि हमारी लाइफ इजीली अकर करती रह गई। जितने भी फंक्शंस हमारे बॉडी में अकर करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन कर रही है और हम जिंदा है। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस अकर ना कर सके, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि अगर हमारे लाइफ प्रोसेस में से कोई एक भी प्रोसेस अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो वी आर नॉट सेफ, वी कांट सर्वाइव, ओके। So what is the meaning of control and coordination here? It is the synchronization between the different organs of the body. It means it is the different organs which perform different functions. They come together, work together and perform the activities of the life. Okay. Let's suppose with the help of the, आप लोग में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रंस होंगे जो कि फुटबॉल खेलते होंगे, ठीक है, स्कूल टाइम में। तो क्या होता है बेटा कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम अपनी आँखों से देखते हैं और हमारे पैर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें वर्क कर रही हैं, आइज एज वेल एज लेग्स। सो आइज आर देयर टू सीइंग द पोजिशन ऑफ द बॉल, वेयर इज द बॉल, बट द मसल्स ऑफ द लेग हेल्प टू किक द फुटबॉल। सो दैट मीन्स आई सीज एंड मसल्स किक. So that's why we are able to kick the ball. So it means the information detected by the eyes is reaching to his muscles of the leg. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको आइज से मिल रही है वो उसके लेग्स के मसल्स के पास जा रही है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि यू हैव टू किक द बॉल, देन दैट ही और शी विल किक द बॉल. So the information is transferred from eyes to the muscles of the leg. Now how this is getting transferred, ये जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है आइज से मसल से, ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली, कि मैसेज का जो ट्रांसफ़र अकर करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो अकर करता है हमारे बॉडी में, वो किसके थ्रू अकर करता है. ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल हमने देखा कि जो आइज़ है वो अपना वर्क, आइज़ का काम होता है देखने का, वो अपना वर्क कर रहा है, मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का, वो अपना काम कर रहा है. लेकिन जब ये दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है. ठीक है, इट मीन्स दे आर इन द सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म. जो भी सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होता है जो कि एक साथ परफॉर्म करते हैं ताकि कोई भी लाइफ की एक्टिविटीज़ अकर कर सके. ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. सो सिमिलरली करंट के केस में भी क्या होता है कि जब हमें करंट लगता है तो हम सोचते नहीं हैं, वी नेवर थिंक, हम तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं. सो हेयर ऑल्सो यहाँ पे जो मसल्स है बेटा कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने से बॉल आ रही है, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि नहीं कि हमें उसे किक करना है कि नहीं करना है. हम 1 घंटा उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, हमारी आइज़ उसे देखेगी, तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी मसल्स के पास और हमारा लेग उसे तुरंत किक करेगा. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, यही चीज़ हम इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे. सो
आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एनिमल्स के थ्रू, क्योंकि उनमें जो ऑर्गन्स होता है वो हमारे पास भी वो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके अंदर जो सिक्रीशन होगा वो हमारे अंदर ही वो सिक्रीशन होगा. वेयर इज इन प्लांट्स में सिर्फ प्लांट्स एनिमल से और ह्यूमन बींग से अलग होते हैं, तो हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स. ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर दो टाइप से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अकर करेगा, हार्मोनल सिस्टम के थ्रू एज वेल एज नर्वस सिस्टम के थ्रू. हार्मोनल सिस्टम के थ्रू मतलब ये है हार्मोन्स के थ्रू. यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग अबाउट व्हाट इज हार्मोन, सो आई विल गिव यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कि हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं बेटा. ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, पेनक्रियाज है, लिवर है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब ग्लैंड्स हैं. मैंने आपको पढ़ाया लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन पार्ट में. ठीक, ये सारे ग्लैंड्स हैं. ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में अगर कहीं से भी कोई सिक्रीशन अकर कर रहा है किसी पार्ट से, तो वो पार्ट हमारा ग्लैंड कहलाता है. ग्लैंड दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब दोज ग्लैंड विच सिक्रीट एंजाइम. ठीक है, ये डक्ट ग्लैंड होते हैं, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये अपना सिक्रीशन पोर करते हैं. वेयर एज एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होगा और ये हमारा डायरेक्टली ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है. इसमें कोई भी डक्ट अकर नहीं करता, इसमें कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है. तो ये डायरेक्टली कहाँ आएगा, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होगा और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते होते जहाँ पे भी उसकी नीड है, जो भी उसका टारगेट ऑर्गन है, वो सीधे वहाँ पे जाके एक्ट करता है. ओके, वेयर एज द नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन से रिलेटेड है. ठीक है, वो हमारे जितने भी नर्व्स हैं उसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर होगा वन प्लेस से अनदर प्लेस पे. वी विल डिस्कस as we move ahead. ठीक है, firstly we are going to discuss about the hormonal system in detail. So chemical coordination in human beings is occurred by the hormones. ठीक है, इसको हम लोग केमिकल सिस्टम में बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हार्मोन है वो एक टाइप का केमिकल मैसेंजर होता है. तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और वो हार्मोन हमारा ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है. ठीक है, विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट. सो हाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लैंड्स विच सिक्रीट समथिंग. दोज ग्लैंड विच सिक्रीट समथिंग आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, डिपेंड अपॉन देयर सिक्रीशन कि वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं. लाइक स्वेट ग्लैंड है. ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू हमारे स्वेटिंग होती है. ठीक है, वो स्वेटिंग कहाँ से हो रही है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू. ये जो स्वेटिंग है बेटा, ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक एंजाइम है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में पोर नहीं हो रहा है, ये हमारे बॉडी के आउटसाइड है. तो जो भी सिक्रीशन बॉडी के आउटसाइड होता है, ब्लड के अलावा होता है, दैट इज नोन एज एंजाइम. लाइक ऑयल ग्लैंड. ठीक है, बहुत लोगों का चेहरा, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों का चेहरा क्या होता है, ऑयली होता है. मैनी ऑफ द गर्ल्स से दैट कि उनका चेहरा बहुत ऑयली है. ऐसा क्यों होता है कि हमारे फेस पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं ऑयल लाइक सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमें ऑयली फील होता है. ठीक है, तो ये सिक्रीशन भी ब्लड में नहीं हो रहा है, ब्लड के बाहर आउटसाइड हो रहा है. दैट्स वाई ये जो ऑयल ग्लैंड है ये भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है. ओके, नेक्स्ट इज द मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड भी क्या करता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड मिलकर प्रोडक्शन करता है, ये भी हार्मोन नहीं है. ठीक, तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन ऐसे सिक्रीशन होते हैं जो कि ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है. उसके बाद वो ब्लड से ट्रैवल करके टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, उस जहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके टारगेट ऑर्गन के पास वो पहुँचाने का काम करते हैं. तो ये भी एक टाइप का मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट से इंफॉर्मेशन को बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुँचाते हैं. एज आई टोल्ड यू कि जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो टारगेट सेल से टारगेट ऑर्गन के पास ही जाके परफॉर्म करते हैं. तो पता कैसे चलता है कि ये टारगेट ऑर्गन, यही टारगेट ऑर्गन या यही टारगेट सेल है. ठीक है, तो आई विल टेल यू कि जैसे जैसे ब्लड के थ्रू ये मूव करते हैं तो जहाँ भी जो भी सेल्स
इसको नीड करेंगे, वो क्या करेंगे, उस सेल्स के पास रिसेप्टर होते हैं जिससे वो इस हार्मोन को रिसीव कर लेते हैं और उससे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल कि एक पोस्टमैन है, उसके पास बहुत सारे लेटर्स हैं जो कि उसको एक कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग घर में। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब उसके पास उस लेटर का पता होगा कि उस लेटर को उसको कहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 लेटर पे एड्रेस देखेगा और वैसे वैसे ही वो लेटर को हाउस टू हाउस पहुंचाता रहेगा। वैसे ही हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी नीड होती है वहाँ पे जो सेल्स के रिसेप्टर हैं उसको रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्टमैन सारे घर में तो लेटर पहुँचाएगा नहीं, जहाँ पे जिस घर का लेटर होगा सिर्फ वहीं पे लेटर पहुँचाएगा ना। इन द सेम वे जो हार्मोन है वो सभी जगह नहीं जाएगा, वो ब्लड के थ्रू सीधे वहीं जाएगा जहाँ पे उसकी नीड है, और कोई भी सेल्स उसको रिसीव नहीं कर सकता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कि जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास एक दे हैव मॉलिक्यूल्स ऑन देयर बॉडी जिसको हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज द हार्मोन कि ये उनके काम की चीज़ है, ये उनके काम का हार्मोन है, और उसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो उससे ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। Thanks for watching. If you have any query, you can ask me in the comment box. If you like my video, please do likes and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.